ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਵਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨੀ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਸੰਸਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਵ ਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ 90 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 90 ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ 90 ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢੈਸੀਓ, ਪੱਕੇ ਬੰਕਦਵਾਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ।
500 रुपया फीस भरी है, डॉक्टर ने कई दवाइयां लिख दित्तियां, ਉਹਦੇ ही हॉस्पिटल के स्टोर विचों दवाई मिलती है, वो दवाई पेशेंट लैन लगे 2000-2500 रुपया होर खर्चदा है, और डॉक्टर एक गल कहंदा मैनू दवाई दिखा के जाई। जदों उन्हें लिफाफा भरिया 2000 दी दवाइयां भी ले लईयां, 500 डॉक्टर की फीस भी भर दी। डॉक्टर दवाई समझा के कहंदा आ सवेरे शाम खानी है, आ राती सौण लग्या दोपहरे खानी है। कोई बंदा कवे मैं डॉक्टर साहब तुहाडी फीस दिती है 500 रुपया, डॉक्टर साहब मैं 2000 रुपया भर दिता तुहाडी दवाई का, मैं 2500-3000 रुपया खर्चे है, पैसे मेरे लगे ने, मैं तुहाडी फीस देती है, हुण डॉक्टर साहब मैं अपनी मर्जी नाल दवाई खावांगा। एक भी पेशेंट कह दिओ जिहड़ा कवे मैं अपनी मर्जी नाल दवाई खावांगा, माफ करियो जे डॉक्टर नूं कहेगा मैं अपनी मर्जी नाल दवाई खावांगा, डॉक्टर कहेगा तेरा कदे इलाज नहीं होएगा, पैसे भावें तू लाए ने, सजना मर्जी डॉक्टर दी चलेगी। सिख किन्ना भी अमीर होवे, रियासती राजा होवे, ये याद रखियो मर्जी गुरु दी चलेगी तां प्रवान होएगा। अपनी मर्जी नाल नहीं। कोई बंदा कहे मैं अपनी मन मर्जी करनी है, मन मर्जियां करन वाले दुनिया विच वड्डे वड्डे होणगे, पर उन्हों का नाम नहीं दुनिया में रहिंदा। अज जे तुसी महाराजा रिपुदमन सिंह जी नूं याद कर रहे हो, उहदा इक्को ही कारण है, उन्हें सिख कौम के सिद्धांतां ते पहरा दिता है, मर्यादा ते पहरा दिता है, और तकरीबन 20 साल अंग्रेजी राज की जेल कट्टी है। 20 साल अंग्रेजी राज के कैद विच रहे। साध संगत सुख आराम की जिंदगी छड्ड के काले पानी वर्गी सजा मद्रास दीयां जेलां च कड्ढणी ये कोई सौखी नहीं सी। उही कट सकदा है जिहदे सिर उत्ते गुरु दा मेहर दा हथ होवे, जिहदे कोल गुरु दे शब्द ते सिद्धांत दा खजाना होवे। सिख कोल ताकत कित्थों आउंदी है, ये याद रखियो। गुरु दी बाणी तो बगैर, गुरु दी रहत तो बगैर सिख दे कोल ताकत नहीं है। ये तुसीं बहुत बार स्टेजां तो सुनिया। अरदास करियो किते अपने जीवन का अंग बने। मेरे लिए भी अरदास करियो, असीं कल्ले सुनाण जोगे ना रह जाइए, साडे जीवन विच भी ये चीजां आउण। साध संगत एक बेनती समझियो, नादर शाह यकरीए तो पुछदा जाके, ये लंबिया लंबिया चोलियां कशहरियां वाले दाड़ियां वाले मैनू रस्ते च लुट लैंदे ने, कौन है? अब्दाली ने भी यकरीए तो पूछे, जदों मैं हरी का पतन टपदे पंजाबों लंघन लगे दरिया सतलुज पहाड़ मैनू लुट लैंदे ने, ये कौन ने? उन्हें कहा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे खालसे ने। कहने का खत्म कर दो। यकरीए ने कहा जी खत्म करदियां थक गए, ये नहीं खत्म हो रहे, खत्म करदियां थक गए, ये खालसे खत्म नहीं हो रहे। उन्हें कहा ताकत कित्थों मिलती है? कहना जी सानू भी पहला भुलेखा रहा, नादर शाह तेरे तो पहला अब्दाली नूं भी भुलेखा रहा, शायद श्री हरमंदर साहिब दे सरोवर विचों इन्हां नूं अमृत दी ताकत मिल जाती है। असी सरोवर पूर के वेख लिया, असी हरमंदर ढाके वेख लिया, पर इन्हां कोल इन्हां दा मुर्शद एक बहुत वड्डी ताकत दे गया है। एक कल्ले भी रह जाण तां भी 1.25 लाख उत्ते भारी पै जांदे ने। उन्हें कहा वो ताकत किहड़ी है? हुण सुनियो साध संगत, बेनती है मिनट थोड़े ने, तुसीं बाद विच अपने अंदर दा भाव आपां जकारे छड्डांगे, तुहाडी जित दी निशानी है, पर थोड़ा जिहा ध्यान दे के सुणो। हुण ओह नादर शाह ने पुछदा है यकरीए कोलों, कहंदा ताकत किहड़ी है? प्राचीन पंथ प्रकाश विच सतरां आईयां ने। ओह नादर शाह नूं कहंदा जी मुर्शद इनको बली भयो है, इनको आबे हयात दियो है, ऐसी गयो कलाम बते है, जिसते सुदा बनाए लह। कहंदा इन्हां दा मुर्शद गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहुत महाबली होए। वो जांदियां जांदियां इन्हां नूं पाठ दस गया, कोई कलाम दे गया। 5 जने इकट्ठे होकर बहिंदे ने, सादा जिहा पानी खूह विचों कढ लैंदे ने, वट्टे विच पा के 5 जने सिर जोड़ के बह के वो कलाम पढ़ते ने। पता नहीं उस पानी विच की भर जांदा है, पीण वाले मरन दा झल अंदर पैदा हो जांदा है, पीण वाला सिर तली ते धर के लड़न लग पैंदा, ओहदे अंदर इन्नी ताकत आ जांदी। उस पानी विच पता नहीं की भरिया, सादे जे पानी नूं अमृत बना लेंदे ने। फिर गाउंदे रहिंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। इहदा मतलब बाणी सब तो वड्डी ताकत है।
सिखो असी नितनेम तो दूर चले गए, सिखां कोलों अमृत वेला खुस गया। अज जिस घर विच अमृत वेला नहीं उत्थे अमृत धारियां दी कमी होएगी, जिस घर विच बाणी नहीं पढ़ी जाती उत्थे बाणे दी कमी होएगी। सानू ढाह एक पास्यों लगी, असी बाणी पढ़नी छड्ड दित्ती, असी काम सौखा लभ लिया। असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सरप्रस्ती तो कोसां दूर जान लग पे। तुसीं बजुर्ग बैठे हो वड्डे, किसी ने घर में सुख दुख विआह शादी मरग होनी, विआहां वेले भी 7 दिन का पाठ, कोई दुख मरग हो जानी तभी साध संगत 7 दिन का पाठ, 7 दिन 8 दिन 10 दिन सहज पाठ चलना, परिवार वालियां सुनना, बच्चियां ने सवेरे शाम नाल परिवार दे बहना। और मेरा विश्वास है, मैं वेखे जिन्हां साधुआं नाल असीं पाठ करते रहे, 8 दिन 10 दिन सहज पाठ किसी घर विच रखिया होना, तो पाठ करने वाले बाबा जी ने कहना भाई तुसीं ऐं करिया करो सरदार जी, सवेरे इशनान करके प्रकाश कर लिया करो। वो घर वाले ने कहना जी सानू करना नहीं आउंदा, कहना कोई गल नहीं मैं सिखा दिना। घर वालियां नूं शौक पैदा हो जाना, घर विच कोई सरदार होवे, कोई अमृतधारी बच्ची बीबी होवे, उन्हें बाबा जी तो सिख लेना। पाठ करने वाले जान तो पहला उन्हें प्रकाश किया हुंदा सी, चौथे दिन प्रकाश करके 1-2 शब्द उन्होंने पढ़ने, गुरु नाल डायरेक्ट संगत जुड़न लग पई सी। 7-7 8-8 दिन सहज पाठ होना, भावना पैदा हुई, सेवा दी गुरु दा भय पैदा होया और परिवार जुड़ जांदे सी। फिर पंथ दा एक चलो हुक्म है, लोड़ पैण ते कंटिन्यू लगातार 48 घंटे 3 दिन अखंड पाठ साहिब हुंदा है। इत्थों तक ठीक सीगा, मैं 2-3 साल पहला भी कहा, हुण सिखो तुहाडे कोल पता नहीं वक्त किहड़ी चीज ने खा लिया, आ मोबाइलों ने साडा वक्त खा लिया। 24 घंटे उन्ना ही समय, समा घटिया नहीं, असीं अपना समा बर्बाद कर दिता। 3 दिन का अखंड पाठ साहिब कराउणा भी गए, 7-8 दिन का सहज पाठ कराउणा भी गए, नवा कम लभ लिया। दुख होवे सुख होवे मरग होवे खुशी होवे, 1.5 घंटे लिए सुखमनी साहिब का पाठ कराओ, छेती महाराज नूं तोर दिओ। जदों आपां गुरु नालों दूर हो गए, ये कमियां पैदा हुई। ये कोई पिछले 10-12 साल तो घाटा पैना शुरू होया, विंदियां विंदियां 15-20 सालों में बहुत दूर चले गया। अपने घर में सहज पाठ करो, सहज पाठ कराओ, बाणी नाल जुड़ोगे, बाणी बहुत वड्डी ताकत है। क्योंकि बाणी कल्ले अखर नहीं, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जीवन अवर ना कोए। सिखा गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मन के वेखदा सही, जिदन मन के वेखेंगे उदन प्रतख प्रगट दिखा देगा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। अगे की लिखिया, प्रतख गुरु निस्तारे। तू मन के वेख, तेनू गुरु प्रतख निस्तारा देगा। तू अंदर मन के वेख गुरु नूं। जिन्हां ने मन्ने हुनी 20-20 साल अंग्रेजां दी कैद कट लई, राज वल परत के मुंह नहीं कीता। अंदर त्याग पैदा होया, त्याग बंदे नूं बहुत उचाई तक ले जांदा है। हां वक्त दे उस वक्त दे लोग भावें कहंदे हुण राजे ने वधिया नहीं कीता, इहनूं की मिलिया दुख भोग के, इहनूं की मिलिया कैद भोग के, इहनूं सुलह कर लेनी चाहिदी सी। वक्त दे लोग कई बार मान नहीं दिंदे, पर समा लंघण तो बाद दुनिया फिर याद करदी है। उस वक्त बंदे की कई बार कदर नहीं पैंदी। माफ करियो, भगती करन वाले भगतां नूं शायद उदों समाज ने इन्ना मान नहीं दिता जिन्ना अज दुनिया सिर झुका झुका के दिन मनाउंदी है। ये वक्त आउंदा है, सच पूजिया जांदा है। पातशाह दी बाणी दा फरमान है, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही, निंदिया सुन के घबरना नहीं चाहिए, निंदिया सुन के उदास नहीं होना चाहिए। एक पंक्ति मैं तुहाडे लई कहां, तुहाडा मनोबल बढ़ेगा। पातशाह ने बाणी अंदर कहा, रब दा जन जिहड़ा है ओदी लोक निंदिया भी करन, वो अपना राह नहीं छड्डदा। क्योंकि 2 चीज़ों लिए तुहानूं तैयार रहना पैना। जे सच दे राह ते तुरना, निंदक भी नाल ही चलणगे। इस तों उदास होण दी लोड़ नहीं। ये 2 चीज़ां इकट्ठियां जन्म लैंदियां ने। जे 80 लोग तुहानूं वाह वाह कहंदे ने, 20 ने कहना माड़ा कीता। बहुत बंदे जिहड़े समागम कराउणे हट गए, लंगर लाणों हट गए। मैं पुछना, भाई साहब हुण नहीं लंगर लाउंदे, हुण तुसीं समागम कराउणे छड्डते? वो कहंदे छड्डो भाई साहब, लोग कदर ही नहीं करदे। छड्डो भाई साहब, पिंड वाले कदर नहीं करते। इसदा मतलब कदर करन तां समागम कराउणे, कदर करन तां आपां लंगर लाउणे नहीं।
गुरु दे जन दी वडिहाई सुनो। पातशाह कहंदे लखां लोक निंदिया भी करन, रब दा जन अपना रस्ता नहीं त्यागदा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। लोक निंदिया भी करन, अपना राह नहीं छड्डदे। उस वक्त हो सकता है राजे नूं बहुत सलामां दित्तियां होण, ये महाराजा साहब नूं कहंदे होण कि तुसीं अंग्रेजां नाल मुल अपना लैके वैर की खड़े, तुहानूं अपना रस्ता बदल लेना चाहिए। पर सिद्धांत ते चलण वाले अज सदियां वध पुजे जांदे ने। गल सिद्धांत ते मर्यादा दी है, मर्यादा विच चलण वाले मंजिल ते पहुंचदे ने। तुसीं रस्ते दी मर्यादा फॉलो करके आए हो, खब्बे हथ चले तां इत्थे पहुंचे हो। जे कोई रस्ते की मर्यादा भंग कर दे वो मंजिल ते नहीं पहुंचता। रोगी दवाई की मर्यादा तोड़ दे वो तंदुरुस्त नहीं होएगा। इसलिए साध संगत सब तो वड्डी रहत। पातशाह ने एक वचन कहा, मैं तुहानूं रहतनामे चों सुणा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जदों पुछया, महाराज तुहानूं सिख किन्ने क प्यारे ने? कलगीधर पातशाह ने कहा, पुत्तां नालों भी प्यारे। महाराज सेवक किन्ने प्यारे ने? कहंदे ओ मैनूं सिखां नालों भी प्यारे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है? सिख पुत्तां तो प्यारे। जदों गल सेवकां दी आई उदों सेवकां नूं हुक्म लिख के दिता है, भावें मुसलमान गनी खां नवी खां साहब होण, उन्हां नूं हुक्म दिता है, ये मेरे फरजंद से बेहद है, मेरा खालसा सदा इनका ऋणी रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिख किन्ने क प्यारे ने? कहणगे सिख मैनू मेरी जान तो प्यारे ने, मेरे पुत्तां तो प्यारे ने। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, इतिहास पढ़ के वेखियो, कलगीधर पातशाह वड्डे साहिबजादियां नूं कहंदे ने सब तो पिछे तुसीं आउणा, सब तो मोहरे मैं किले विचों निकलांगा। प्यारे दया सिंह जी ने कहा, महाराज अपने परिवार नूं पहले 3 हिस्सियां च कर लिया, क्यों? अपने पुत्तां नूं विचकार रखो। हर बंदा ये सोचदा है जदों भीड़ पै जाए परिवार नूं गब्बे रखीदा, जदों कोई भीड़ पै जाए परिवार नूं बंदियां दे विचकार गब्बे रखीदा। महाराज तुसीं साहिबजादियां नूं पिछे क्यों ते आप मोहरे क्यों? हजूर ने कहा, अज आनंदपुर साहब का किला छड्डना, बाहर खलोते साडे उत्ते हमला करनगे। दया सिंह किते दुनिया ये ना कवे गुरु गोबिंद सिंह सिखां दी शान च अपने पुत बचा के लै गया। जे पहला कोई तीर जां गोली लगेगी गुरु गोबिंद सिंह दे सीने विच लगेगी, जे पिछों कोई वार करेगा तब पहला मेरे पुत्तां दे सीने विच गोली लगेगी। ये ना कहण सिखां दी शान च गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्र बचा के लै गए। साध संगत सिखां नालों वध, सिखां दे परिवारां नालों वध गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने अपने बच्चों नालों वध सिखां दे परिवारां नूं प्यार कीता। अच्छा कदे नहीं तुसीं सुनिया होना, आनंदपुर साहब 8 महीने घेरा पिया रहा, आनंदपुर साहब विच किसी सिख दा परिवार नहीं मरिया, आनंदपुर साहब विच किसी सिख दे परिवार नूं भुख नहीं झलनी पई। की आनंदपुर साहब सिख नहीं सी रहिंदे? वसदा रसदा श्री आनंदपुर साहब सी, उत्थे किसी सिख दे परिवार नूं दुख भुख नहीं झलना पिया। 8 महीने घेरा पिया रहा। पता क्यों? अपना परिवार दुखां ते भुखां विच रखे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां दे परिवार घेरा पैण तो पहले पिंडां नूं भेज दित्ते, मैं अपने बच्चों नाल दुख झलांगा। पातशाह ने कहा, सिखो मैनू पुत्तां नालों वध सिख प्यारे ने, पर एक गल याद रखियो, सिखां नालों भी कोई प्यारी चीज है मैनूं। महाराज सिखां नालों प्यारा तुहानूं की है? आपां बैठे जिन्ने हर बंदा सिख खवाउंदा। कलगीधर पातशाह ने कहा, मैनू मेरे परिवार ते पुत्तां नालों प्यारे सिख ने, पर याद रखियो सिखां नालों भी कोई चीज मैनू प्यारी है। वो पता की है? रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। मैनू सिखा तेरे नालों प्यारी रहत है। जिदन रहत विच चलेगा उदन गुरु गोबिंद सिंह दी सारी ताकत तेरे नाल होएगी। जिदन रहत विच चलेगा, ये लिख के दिता है, एग्रीमेंट लिखिया जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखती रूप में दिता, सिखो लिख लो एक बार, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। ये लिख लो, जदों गुरु दा सिख रहत विच रहेगा, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं में सारा। जब वे गह विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जिदन रहत विच न्यारा रहेगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सारी ताकत उहदे नाल रहेगी। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी की गवाही है, लखां बावां भी तुहाडा कुछ नहीं विगाड़ सकदियां। जाम गुरु होए बल,
धने क्या गर्भ दिजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै। लखां बावां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां जे गुरु तुहाडे वल खड़े। पर शर्त एक है, सिख गुरु की रहत विच रवे, बाणी नाल जुड़ो, बाणे नाल जुड़ो, फिर ये शताब्दियां मनाइयां हुई सफल ने। साध संगत, एक कथा मैं कई बार लाइव तो कही है, हिंदुस्तान विच मराठियां दे राज दे सामने कोई मुगलिया बादशाह नहीं टिक सकिया। औरंगजेब सारी उम्र दखण की मुहिम ते रहा, वो तो जितया नहीं गया। अकबर बादशाह सारी उम्र मराठियां तो डरदा रहा। और महाराणे प्रताप ने एक गल खुले शब्दां च कही सी अकबर नूं, जिदण मेरे राज रियासत वल तूं मूंह कीता, उदण मैं भावें रवां ना रवां तैनूं तखत ते नहीं रहण देंगा। मैं किसे दे राज ते हल्ला करके राज नहीं हड़पांगा, पर अपना राज भी किसे दे हथ नहीं दवांगा। उन्हें छोटी जी रियासत उत्ते राज कीता। कहंदे ने एक बार भंड महाराणे प्रताप दे रियासत विच आ गए। उन्होंने कम सी कि राजियां नूं कीमती गल्लां सुणाउणियां, पर हास रस विच सुणाउणियां। कई बार गल उहिओ हुंदी है, हास रस विच कीती होई गल भी बहुत कीमती हुंदी है। जदों राजे दे दरबार विच गल्लां सुणाउण महाराणा प्रताप खुश हो गया। खुश होकर महाराणे प्रताप ने गल चों हीरियां दी माला ला के उस गलबात सुणाउण वाले भंड वल सुट्टी। लै वे तेरा नाम। उन्हें वो मोतियां दी माला कीमती चुक के राजे नूं वापस करके कहा, बादशाह सलामत, तोतों ये इनाम नहीं लेना। कहना क्यों? कहणगे जी जे तुसीं वाकई मेरी गल तो खुश होए हो, फिर मैं तुहाडे कोलों मोतियां दी माला इनाम विच नहीं लैनी, मैं इनाम मूंह मंग के लेने। राजे ने सोचा की मंग लेगा? जमीन जायदाद चाहिए, दस कितनी जमीन तेरे नाम पा दा, किन्ना पैसा धन दौलत सोना चाहिए, दस। उन्हें कहा जी ना सोना चाहिए, ना धन दौलत, ना जमीन जायदाद चाहिए है, मैनू पता की चाहिए। जे तुसीं खुश हो, आ जिहड़ी तुसीं अपने सीस ते दस्तार सजाउंदे हो ना, राजियां वाली पग एक दे दिओ। तुहाडे कोल तां बहुत पग्गां ने, रोज बदल के सजाउंदे हो, एक दस्तार मैनू दे दिओ, कदे असीं भी सजा के वेख लांगे। वो राजा महाराणा प्रताप बोलिया, कहना वे पग नहीं दे सकदा। कहना जी इन्नी किन्नी कीमती है? उन्हें कहा सज्जना गल कीमत दी नहीं है, मैं तेनू जमीन जायदाद सोना दे सकदा, हीरे मोतियां दी माला दे सकदा, जे कहना सोने नाल तोल सकदा, पर मैं सिर दी दस्तार तेनू नहीं दे सकदा। गल कीमत दी नहीं है, पग भावें सस्ती होवे, पर सज्जनों सिर ते सजाउण वाली बंदे दी शान होया करदी। माफ करियो, कई बार कोट पैंट महंगा हुंदा है, पैरां च पाया जोड़ा भी किसी का 5000 का हो सकता है, पर सज्जनों पग भावें 500 की होवे, पग बंदे की शान हुंदी है। कदे नहीं कोई कहना जी ओदे जोड़े ला ले, ओदे कपड़े ला ले, जे कोई बेइज्जती होवे कहंदे ओदी पग लथ गई। पग बंदे की शान है। दस्तार राजियां ने अपनी शान विच रखी। उन्हें कहा नहीं दस्तार नहीं दे सकते। कहना जी देखो तुसीं वादा कीता है कि जो मैं मंगा वो तुसीं दवांगे, दोगे, हुण मैनू अपने सिर दी दस्तार दिओ। महाराणे प्रताप ने कहा फिर एक ते तो वादा लेना है। कहना जी दसो? कहना पग मैं तेनू दे दिन्ने सजना, पर जदों कदे ए मेरे सिर दी दस्तार पग तू सिर ते सजाई होवे ना, एक मेरे नाल वादा कर, तू मेरे सिर दी पग अपने सिर ते बन के किसी अगे सिर नहीं झुकाएगा। बस इन्ना वादा कर। मैनू पता है तू दूजियां राजियां दियां रियासतां विच भी हासे दियां गल्लां सुणाउण भंड बन के जाने, पर सजना उत्थे जाके सजदे करदा, बार बार बादशाह सलामत करके सिर झुकाउने, मैं तेनू पग दे देना, मेरी पग बन के किसी राजे अगे सिर ना झुकाई, मेरी शान है। उन्हें वादा कर लिया। कहना जी मरासी दे पुत दा वादा रहा तुहाडे नाल, जिदन तुहाडी पग बन्नी होएगी सिर नहीं झुकावांगा। उन्हें पग साम के रखी। जदों कदे रिश्तेदारी विच विआह शादी होनी, सिर ते सजाउणी, लोकां गल करनी, विआह महाणे नूं महाराणा प्रताप ने दिता होया, ओदी बड़ी शानो शौकत सी, इज्जत पत रही और बड़ी शान बनती रही। एक दिन किसी विआह शादी उत्ते दस्तार सजाई, सारे लोग सिफतां करन। इन्ने नूं बादशाह अकबर दखण दी मुहिम ते पहुंचा होया सी। उन्हें सुनिया, कल्लिया 2 सिपाही कल्ले जाओ भी उन्हां भंडां नूं बुला के लियाओ, अज मजमा लाईए। वो सिपाही आए,
उन्होंने विआह शादी ते पुछ के कित्थे गए ने, उत्थों जाके उन्होंने कहा चल भी तेनों बादशाह ने बुलाया है। उस वक्त चल पे। वो जदों दोवें भंड तुर पे, सिर उत्ते वो वड्डे भंड ने दस्तार बन्नी हुई है। जदों अकबर बादशाह दे दरबार च गया, वड्डे वड्डे शीशे लगे हुए ने, दरबार सजिया होया। दरबार च वड़दियां अपना मुंह वेख्या ते सिर ते पग महाराणे प्रताप दी है। चित विच आया, ओहो सिर ते पग बादशाह दी बन्नी हुई है, जे मैं अज सिर झुकाया मेरा वादा टुट जाना है। एक शान रखण वाले महाराणे प्रताप दा सिर झुक सकदा है, नहीं मैं अज सिर नहीं झुकाउणा, जो मर्जी हो जाए, वादा पूरा करना। महाराणे प्रताप दी पग बन के सिर नहीं झुकाउणा। जदों अकबर दे दरबार च पेश होया, ओ भंड ने मरासी दे पुत ने हथ खड़ा करके कहा, बादशाह सलामत, की हाल है? अकबर हैरान हो गया, कहने लगा मेरे दरबार च सिर झुकाउण वाला हथ खड़ा करके कहना की हाल है? बादशाह सलामत, की हाल है? अकबर एकदम हैरान रह गया। उन्हें गुस्से में आके कहा, ओए सिर नहीं झुकाया अज, भुल गए तू मेरे टुकड़ों ते पल दे, भुल गए मेरा दिता तुसी खांदे हो, मेरे अगे सिर नहीं झुकाया, हथ खड़ा करके कहना दस की हाल है बादशाह सलामत, ते नाले आ पग किहदी बन्नी हो? वो भंड बोलिया, कहना जी इसे पग करके अज सिर नहीं झुकाया तुहाडे अगे। बादशाह सलामत, ये किसे अणखी महाराजे की पग बन्नी हुई है, ये किसे अणखी बादशाह की पग है। अज मैं सिर झुकाया, ओदी अणख तुहाडे अगे झुक जाएगी, मैं सिर नहीं झुकावांगा, भावें वड्डना वड्ड दिओ। अकबर बड़ा हैरान होया, कहना जे मैं सोने नाल तोलदा, कहना जी सोने नाल तो भी तोलदा सी, सोना छड्ड के तो ओहदे कोलों पग लई है। कहना जे मैं जमीन जायदाद तेरे नाम लवा दा, वो कहना जी जमीन जायदाद तो भी इनाम पे दिंदे सी, मैं सब कुछ छड्ड के ओदी पग लई है। अज कणखी बादशाह दी पग बन्नी, तुहाडे अगे सिर नहीं झुकावांगा, वड्डना भावें वड्ड दिओ। जदों इन्नी दृढ़ता वेखी, अकबर खुश होके बोलिया, कहंदा अज तेरा ते मेरा कद बराबर हो गया है, भावें तू एक लोकां दे दरबारां विच उस्तत करके पैसे मंगण वाला है, एक भंड होके भी अज बादशाह दे बराबर हो गया। जा तेनू इस रियासत दा अद्धा राज दिता, अज तो बाद तू भंड नहीं होएगा, तू राजा खुआएगा। साध संगत, एक बंदे ने अणखी राजे दी पग दी शान रखी, ओनू अकबर बादशाह ने अद्धा राज दे दिता। ये गल सिख नू याद रखनी चाहिए है, सिर ते बन्नी हुई पग सिखा तेरी नहीं, ये 2 4 5 7 मीटर दी नहीं है, ये सजना 10वें पातशाह दी दिती शान है। जिदन गुरु गोबिंद सिंह दी दिती दस्तार दी तू शान रखेगा, उदन गुरु गोबिंद सिंह तेनू लोक परलोक दा राज देणगे। ये छोटियां छोटियां रियासतां दे राजे ते 5-10 साल रहिंदे ने, निकल जांदे। सज्जणों, इस धरती ते सदियां तक जे राज रहिंदा है, उन्हां बंदियां दा रहिंदा जिहड़े गुरु दी रहत मर्यादा विच रहिंदे ने, जिन्हां ने गुरु दी शान बरकरार रखी है। अज 100 साल बाद भी उन्हां दा दिन तुसीं मना रहे हो। किन्ने राजे होके चले गए, उस तो बाद किन्ने राजियां ने राज भोगे। अज 100 साल बाद भी जे कौम चेते कर रही है, इस करके जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की दिती दस्तार की शान नूं बरकरार रखे। अज जरूरत है आपां उस शान नूं बरकरार रखीए। चंद चीज़ां दे लालच विच आपां मौका परस्त ना होईए। आपां ये ना होईए वे पैसे ले चलो उधर ज्यादा बनते ने, कनेडा नूं भजो, इधर पहुंचो। मैं नहीं कहना बाहर ना जाओ, पर अज तुहाडा पंजाब तुहाडे हत्थों खुसदा जा रहा है। अपने बच्चों नूं वध तों वध एजुकेशन दिओ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक कार्य शुरू किया है, मैनूं खुशी है, भावें बहुत देर नाल शुरू होया, पर बहुत वधिया एक शलाघा योग कदम इन्हां ने चुके है। तुसीं एजुकेशन लेना चाहुंदे हो, बच्चों नूं पढ़ाओ जिन्ना पढ़ा सको। कोई बच्चा IPS PCS बनना चाहता है, कोई मेडिकल करना चाहता है, पैसे नहीं खर्चा पंथ करेगा। अज कौम नूं डॉक्टरां दी लोड़ है, इंजीनियरां दी लोड़ है, IPS IAS PCS बच्चों की लोड़ है। जिहड़े बच्चे पढ़ लिखे ऑफिसर बन, तुहाडे हत्थों चीज़ां निकलदियां जा रही हैं। किहनूं जाके मैमोरेंडम देने अपनी मंगां दा? ये ते सोचो, वो किहदे कोल जाके अपने धर्म की तुसीं पक्ष रख के कहो जी सानूं इंसाफ दिओ। जिहड़ा सामने कुर्सी ते बैठा उन्होंने तुहाडे धर्म बारे नहीं पता, इंसाफ की दे। जिन्हां वड्डे वड्डे जज्जां कोलों तुसीं इंसाफ मंगणे, वो जज नूं तुहाडे धर्म दा ही नहीं पता। जिदन तुहाडे धर्म दे राह ते चलण वाले तुहाडे बच्चे जज बनणगे, उन्हां नूं पता होएगा गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सत्कार की है।
उन्होंने पता होएगा कौम का की योगदान है, इस कौम की देन की है इस देश नूं। साध संगत अज अपने बच्चों नूं पढ़ाउण दी लोड़ है। ठीक है, अगे साडे पंजाब चों बंदे मजबूरी बस विदेशां जांदे सी, क्यों? कम घट सी, जमीनां थोड़ियां, चलो होर हुण ते वध गया काम। हुण ते सतगुरु किरपा बख्शिश करन, आप ही पातशाह रहमत करन, इस चीज़ नूं रोकण, सानूं सोझी देण, अपने बच्चों नूं वध तों वध पढ़ाओ, अपने बच्चों नूं एजुकेशन दिओ, तां जो असीं वो राज लिया सकीए जिहड़ा पातशाह ने बख्शिश कीता है। और साध संगत इस गल की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, पंथ खतरे विच आ गया, ये नहीं खतरा खुतरा, ये निकल जाना सब कुछ। ये करन वाले सब इधर उधर हो जाने ने, जिन्हां दे अंदर कोई है चल रहा है, ये सदा नहीं रहना काम, क्योंकि पंथ किसी बंदे का बनाया नहीं। 10वें पातशाह ने अपने चारे पुत कुर्बान करके इस पंथ नूं खड़ा किया। किहदी ताकत है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पंथ मिटादा है? किहदी ताकत है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हस्ती मिटादा है? नहीं, वड्डे वड्डे राजियां दीयां हस्तियां मिट गईयां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा अज भी उहिओ साध संगत सच्चा पैसकार है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर शाहां पातशाह निश्चल चौर छत। और जिन्हें इस निश्चल चौर छत गुरु ग्रंथ साहिब दी तब्या विच अपना राज लिया, वो सदियां तक बंदियां दा नाम रहा। तुहानूं पता होना, स्टेज तो तुसीं सुन लिया होना। पहला समा मेरा समाप्त हो चले, 2 मिनट ध्यान नाल सुने। जिन्ने भी नाभा रियासत दे पहला राजे बनते रहे, जदों तो अंग्रेजी राज ने दखल किया, उदों साध संगत भारत का वायसराय जिहड़ा अंग्रेज अफसर सी, वो आके ताजपोशी करता रहा राजे। पटियाले वाले राजियां दी ताजपोशी अंग्रेज करते रहे, 90 आके ताजपोशी करते रहे। पर जिस महाराजे की अज तुसी 100 साल याद मना रहे हो, तुहानूं पता होएगा जिदन उन्हें इस रियासत का राज सामना सी, सब तो पहला क्रांतिकारी फैसला यह सी, मैं किसी बंदे कोलों, किसी वायसराय, किसी अंग्रेज कोलों अपनी ताजपोशी नहीं करवानी। इनकार कर दिता, मैं ताजपोशी अंग्रेज वायसराय तो नहीं करावांगा। फिर नाल दे पूछे जी कितों करवानी है? कहंदे जिहदा तखत सजा निश्चल है, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर शाहां पातशाह निश्चल चौर छत। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा प्रकाश करो। और बंदगी दी मूर्त संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणा साहब वाले, उन्होंने सदे 5 प्यारे सदे, 5 प्यारियां कोलों अरदास करके सरोपा पा के ताजपोशी हुई। वो वखरी गल है, बहुती देर दुनियावी तखत ते नहीं रहे, भावें 20 साल 19 देर तखत ही नहीं रहे जिन्ने साल कैद विच कटने। माफ करियो, दुनियावी तखत ते उन्ने साल नहीं बैठे जिन्ने साल जेलों में कटने पे। पर अज 100 साल बाद भी उन्होंने याद मनाई जा रही है, सदियां तक उन्होंने नाम रहिंदा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नदर करते हैं। साध संगत इसलिए गुरु ते विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। शेरे पंजाब की 11 साल की उम्र में ताजपोशी हुई सी तखत दी, और कहते सन इन्हें राज की कर लेना बच्चे जाए ने। जिदन पंथ की बंदगी की मूर्त संत ते सिपाही दे मार्ग ते तुरन वाले बाबा साहब सिंह जी वेदी उन्हां मिसलां विच खलो के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तब्या दस्तार लेके चरनां नाल छुआ के अरदास करके कहा सी, आ बेटा तेरे सिर ते दस्तार सजाइए। 11 साल की उम्र विच शेरे पंजाब तो बाद विच बने, सीस ते दस्तार बन के कहा, बेटा पहला जुगो जुग टल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक, फिर गुरु दे पंथ नूं फतेह बुला। वक्त आएगा तेरे सिर दा ताज कोई नहीं ला सकेगा, दुनिया तेनों कल्ला महाराजा नहीं, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह कहेगी वो कुछ होया। और 40 साल राज किया साध संगत। वो दस्तार पता कितों बन्नी? गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां छुआ। ये मैं तां तुहानूं बेनतियां कर रहा, आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल बाणी ते बाणे नाल जुड़िए, मन के वेखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं, परतख फिर प्रगट गुरां दी देह तुहानूं नजर आए। और शेरे पंजाब के पुत्र नूं अंग्रेज लै गए लंडन, छोटी उम्र में ही महाराज दलीप सिंह, सिर दे बाल कट दिते, इहदा धर्म खोलो, राज खोलिया, धर्म खोलिया। पर लंडन विच रहिंदा वायसराय जिहड़ा डलहौजी दा अगे पड़पोता सी, वो लाट दे पोतरे ने जो उदों राज कर रहा सी, उन्हें सिर दे बाल कट दिते महाराजा दलीप सिंह ने। पर कदे कदाई वो प्यो दी अंदर जिवें तुहानूं कह रहे सी हुणे धामी साहब,
कि ये गुरु की बख्शिश है। अंश वंश अंदर वो सिक्खी की ताकत 20 सदियां तक रहिंदा है। पता नहीं उस कुल में कदों की पैदा हो जाना। ये पातशाह की बख्शिश। साध संगत कदे कदाई अंदर प्यो की याद आनी। हो भावें छोटी उम्र में ही शेरे पंजाब प्यो नूं वेख्या सी, अखां नाल वेख्या सी। जदों चूड़ीदार पजामा ते कुर्ता पाउणा, लंबा कपड़ा लैके भावें सिर दे बाल कट्टे सी, वो लंबे कपड़े दी सिर ते पग बन लैनी। जदों लंडन दे उस अंग्रेज वायसराय दे महल विच कदे सिर ते पग बन के चूड़ीदार पजामा पा के बाहर निकलना, उस वक्त वायसराय ने कहना इहदे सिर तो पग ला दिओ। भावें मैं इहदा धर्म खोलिया, भावें मैं इन्हां दा राज खोलिया, पर पता नहीं क्यों जदों ये बच्चा सिर ते पग बंनदा है मैनूं डर जिहा आउंदा है। सिखो ये 10वें पातशाह की दस्तार है। हुण दस्तार की गल की गई, वो बैठे ये दस्तार जे 10वें पातशाह की समझो। मैं गुरसिखां दे दर्शन किए, जदों दस्तार बंनदे पहलां गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नाम लैके पेज लाउंदे ने। इदां नहीं भी जाके इदां सड़ दिंदे ने दस्तार। इज्जत करके वेखो, तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ताकत तुहाडे नाल होए। घर विच बाणी का सत्कार करो, बाणे का सन्मान करो, बाणी ते बाणे नाल जुड़ जाइए। ये गुरु ने सानू लिख के दिता है, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। गुलदस्ता कई रंगां दे फुल्लां नाल बनदा है। अज पंथ विच कई संस्थावां ने, आपां सब दा सत्कार करिए, सब नूं प्यार करिए, सब नूं इकट्ठे रखिए और साध संगत निराशता नहीं कदे लिओ। मैं ये परसनल तौर पर भी मैंने एक गुरसिख मिले पंथ का, कहने जी पंथ का की बनेगा, कट्ठे नहीं हो रहे, कट्ठे नहीं हो रहे। मैं उन्होंने कहा कोई गल नहीं, ये फिक्र ना करो, पंथ 10वें पातशाह दे। आप गुरु ग्रंथ साहिब का अदब करके तुरन लग जाइए। पंथ वेख्यो गुरु ग्रंथ साहिब दे मगर है पंथ। आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अदब करन लग जाइए। घरां विच बाणी का भै करो। जिन्हां दे घरां विच गुटके दी पोथियां पईयां ने बाणी दियां, तुहानूं बेनती है कपड़े च लपेट के रखा करो। इनू मनमत ना समझो। नितनेम करने मोबाइलों तो ना करो, गुटका साहिब तो करो। हाँ किते सफर में जा रहे हो, असीं भी मोबाइल तो पढ़ी दे, शब्द भी वेखी दे ने। सफर में जा रहे हो मोबाइल तो शब्द पढ़ना चंगी गल है, पर सिखो अज मैं तुहानूं पंथक स्टेज तो बेनती करांगा, नितनेम गुटका साहिब तो करो। क्यों? बाणी दा अदब करोगे, गुटका साहिब चुकोगे हथ धो के चुकोगे। जपजी साहब कड्डोगे पहला मत्था टेकोगे प्यार, भावना नाल पढ़ोगे, उन्होंने हाथ ना कोई जूठा लगे, कोल कपड़ा रखोगे, अदब करन लग जाओ। जो सिख गुर बाणी भै करे, बिन प्रयास भव सागर तरे, ये रहत है। जपजी साहब का पाठ हर छोटा बड़ा बच्चे सब नूं कराओ। ये तुहानूं बेनती है। भाई गुटका साहब तो पाठ कर लोगे, सारे कर लिया करोगे। जपजी साहब पक्का, जिन्हों का नहीं वो भी अज पक्का करके जा कर लोगे। हाथ खड़े करके जकारा छड़ दो, पक्के हो जाइए। बोले सोनेहाल, क्योंकि सब कुछ बाणी ने देना है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अदब करिए, पंथ आपे इकट्ठा हो जाए। तो मैनू कहते जी पंथ का बड़ा खतरा जी, पंथ का भाई साहब की बनूंगा। मैं उन्होंने कहा ये तो अरदास करनी पैंदी। कहते जी किवें? मैं कहता 10वें पातशाह ने भी अरदास की। जदों पातशाह ने पंथ चलाया ना, उदों अकाल पुरख का रूप है मेरा 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज। तामी कलगीधर पातशाह जदों पंथ सजन लगे, अकाल पुरख नूं कहंदे ने पंथ तां चलना जे तुसीं सहायता कीती, मेरे तो नहीं चलना महाराज। ये तो 10वें पातशाह ने भी कहा पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। हे अकाल पुरख तुसीं सहायता करियो तां पंथ चलने। बाणी पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अदब करिए, फिर सदा ही चढ़दी कला च रवांगे। ये 100 साल की तुहानूं सब नूं नाभे वालियां नूं वधाई। सतगुरु किरपा बख्शिश करन। तुहाडे तो उम्मीदां ने तुसीं पंथ की चढ़दी कला वास्ते आउण वाले वक्त विच भी कारगुजारी करोगे। सारियां शख्सियतां दा धन्नवाद। मैनूं टोड़ा साहब ने फोन करके हुक्म किया और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किरपा करन। जदों भी कोई पंथ वालों हुक्म करते हैं, सेवा तुहाडी संगत के चरणों पिछे सानू कथा दी नसीब हुई है और साथ संगत तुहाडा हुक्म सिर मत्थे प्रवान करके सेवा करना आई दे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नदर कर मेरे लिए अरदास करियो, असीं कल्ले कहण जोगे ना रह जाइए। साडे उत्ते हथ रखियो साथ संगत, असीं जीवन विच भी कमा सकीए, क्योंकि फुकियां चीज़ां बहुती देर नहीं रहिंदियां। ये वड्डियां जिम्मेवारियां ने। पातशाह नदर करन साडे कोलों ओह अखवाउण जिहदे नाल पंथ चढ़दी कला चले।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।